Good morning, students. Welcome to yet another lecture of physics chapter number 3, current electricity. And as discussed in last class, today we'll be focusing on certain smaller topics, and then we'll go into the temperature dependence of the resistivity or resistance. Okay, so first topic which we'll cover today is current density. Current density, it is a very simple thing. Current density is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor. Okay, so what is current density? Is the amount of current flowing per unit area of the conductor, but it should flow, there is one catch, it should flow normally to the cross section. Then we will have a very good say relation. So the current density, it is denoted by J. So small j, be small j. Okay, it is denoted by small j, and it is current flowing per unit area. So small j, this will be current flowing, current is I per unit area. If I divide it by area of cross section, then small j is I by A, or we can also write it current is charge per unit time Q by T on A. So this is the formula. The SI unit of current density is ampere meter. What is SI unit? It is ampere per meter square. Sorry, I'm wrong. Ampere per meter square. So current density, again, it current is a scalar quantity, but current density is not a scalar quantity. It is a vector quantity, and it is directed along the electric field. So please remember this, keep in your mind, the current density is a vector quantity and it's directed along the electric field. Current density is a vector quantity. Okay, it is a vector and it's directed along the electric field. It is along the electric field. Okay, so we'll use this in deriving this equivalent form of Ohm's law. Okay, now after current density we'll come to conductivity. Conductivity is nothing but it is the reciprocal of resistivity. So conductivity of a conductor is defined as the reciprocal of its resistivity. So जहाँ resistivity कितनी डिफ़िकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में इस कंडक्टर के थ्रू, ये दिखाता है. तो कंडक्टिविटी ये दिखाता है कितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो मूव कर सकता है उस कंडक्टर के थ्रू. सो कंडक्टिविटी इज अगेन, आई टोल्ड यू, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी इज शोन बाय सिग्मा. इट इज शोन बाय सिग्मा. सो हियर द रिलेशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 upon rho. Sigma is equal to 1 upon rho. Conductivity is reciprocal of resistivity. So that brings us to conductance. So conductance is again, it is inverse of resistance. So conductance is equal to the inverse of its resistance and it is denoted by G. है ना. कंडक्टेंस को कैसे दिखाते हैं? G से दिखाते हैं. So what is G? G is equal to 1 upon R. Okay. So G is 1 upon R. तो यूनिट क्या है इसका? यूनिट, SI यूनिट इज इक्वल टू R का है ओम, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स. ओम इनवर्स यानी ओम टू द पावर -1. इसको हम मो भी लिखते हैं, MHO, मो. ऐसा यूनिट इसका क्या है? मो या ओम इनवर्स. सिमिलरली व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी की SI यूनिट हो जाएगी, जैसे रेजिस्टिविटी के ओम मीटर है, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मो पर मीटर. इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? ओम टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -1 या mho per meter. This is the SI unit of
कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है मो, एंड करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर square. Now this brings us to this topic, equivalent form of the Ohm's law. We know that according to Ohm's law, potential difference is equal to current multiplied by resistance. Okay, this is Ohm's law. Also we have deduced in the last class, resistance is equal to rho L by A. Okay, resistance is rho L by A, where rho is the resistivity, L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor. So I can put the value of R here, and also we can write V is equal to electric field multiplied by the length of the conductor. This is also V is equal to E into L. Suppose I put all this value into this formula, so we will find EL is equal to I into rho L by A. Okay, EL is equal to I into rho L by A. तो ये कट गया. E is equal to I upon A into rho. Okay, what is I upon A? अभी हमने देखा I upon A is current density. तो मैं ये भी लिख सकता हूँ E is equal to J into rho. E is equal to J into rho, या फिर मैं J को बताऊँ current density, J is equal to E upon rho. J जो कि करंट डेंसिटी है इज इक्वल टू E अपॉन रो. और 1 अपॉन रो क्या है? सिग्मा. 1 अपॉन रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन रो क्या है? सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी. और आई कैन राइट J इज इक्वल टू सिग्मा E. नाउ दिस इज द equivalent form of the Ohm's law. Current density J is equal to conductivity, that is sigma, multiplied by the electric field, and this is the scalar form. I can write also this in a vector form. So in a vector form I will write current density vector J is equal to conductivity multiplied by the electric field of which is formed due to the potential difference applied on the conductor. So this is what actually was the equivalent form of Ohm's law. In the next topic, what we'll discuss is the limitation of the Ohm's law. Though there are a variety of materials in which the Ohm's law holds good for a very big extent of temperature, but there are certain materials or devices in which this proportionality between V and I, between potential difference and current, does not hold good. So there are certain types of devices which we'll discuss in which this Ohm's law is not valid, or it remains valid for a certain period of time, and then above that it is not valid. So there are 3 types of devices. In the first one, the relation between V and I is non-linear. The relationship between V and I is non-linear, or we can say that potential difference ceases to be proportional to I. Okay, in the first case, V ceases to be proportional to I. The potential difference is not proportional to I. How will we know that it is not proportional to I? See, we have drawn a graph between VI ग्राफ में जब बनाए थे, तो वो ग्राफ क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था. क्या था वो? स्ट्रेट लाइन था. इफ आई ड्रॉ हियर
in the x-axis is I and the y-axis is V. So ohmic resistance या ohmic material, ohmic conductor क्या होगा? It will have, suppose if I started from the origin, it will be a straight line for a ohmic, और जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे उसके रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनली वोल्टेज भी, सॉरी वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा तो करंट बढ़ता जाएगा. ओके, सो व्हाट वी गेट दिस रिलेशन, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको. बट इवन इन सम मेटल्स आफ्टर सम से अमाउंट ऑफ करंट, वो जो वोल्टेज है वो उस लीनियर मोशन में नहीं बढ़ता, या तो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है या एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है. इन केस ऑफ मेटल वो डिक्रीज़ होता है ना, सॉरी इंक्रीज़ होता है. जो रेजिस्टेंस है उसका इंक्रीज़ होता है, क्योंकि व्हाट इज़ इट, द स्लोप शोज़ द रेजिस्टेंस. ये स्लोप क्या दिखाता है? रेजिस्टेंस दिखाता है. तो इन केस ऑफ मेटल वो रेजिस्टेंस एट अ हायर वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज. ओके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्यों होगा. सो क्यों होगा ये भी अभी बता देता है. जैसे जैसे करंट उसके अंदर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज, एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज विल स्टडी इट फर्दर, द रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर increases. So what happens is, if it is, suppose जो ट्रू वैल्यू है उसको हम डैश 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 करके एक लीनियर होगा, तो जो कंडक्टर है ना, फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ आई इट विल फॉलो दिस ओमिक पाथ, द स्ट्रेट लाइन पाथ, और उससे थोड़ा सा आगे जाएगा तो इट विल डेविएट. ओके, इट विल deviate because the temperature has increased, and because of that the resistivity or the resistance has increased. So this V ceases to be proportional to I at that certain level of current. Okay, this was the first relation, the first factor. Second is there's a relation between V and I, but it also sometimes in some material it depends upon the sign of Y or the direction of the voltage potential difference. Suppose and specifically this happens in semiconductor. Okay, so what happens is, if I draw again a graph, okay, इस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. दिस इज, मैंने अभी जो ड्रॉ किया इसमें ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, और ये है I. Okay, the current I. Now suppose in a conductor मैंने उस पर 5 वोल्ट अप्लाई किया. सपोज एक कंडक्टर है, उसके एंड टू एंड हमने +5 वोल्ट अप्लाई किया, तो सपोज उसमें एक करंट आया से 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, उसमें करंट डेवलप हुआ. 5 वोल्ट हमने पोटेंशियल लगाया तो उसमें करंट डेवलप हुआ, वो 3 एम्पियर, सपोज 3 एम्पियर हुआ. लेकिन अब मैं उसका पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ. क्या करता हूँ, उसका पोलैरिटी चेंज करता हूँ. जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ नेगेटिव लगा देता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल जहाँ लगा हुआ पॉजिटिव. अब मैं क्या कर रहा हूँ 5 वोल्ट्स तो अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. इसको यहाँ पे बोल देता हूँ कि नेगेटिव 5 वोल्ट्स मैंने अप्लाई कर दिया. इसमें क्या कर दिया, नेगेटिव 5 वोल्ट्स अप्लाई कर दिया. तो अब इसमें जो करंट डेवलप होना चाहिए, अगर ये ओमिक रेजिस्टेंस होता, ओमिक डिवाइस होता, तो ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. और कितना आना चाहिए, 3 एम्पियर आना चाहिए, है ना. जैसे 5 वोल्ट में 5 एम्पियर आया तो -5 वोल्ट में 3 एम्पियर आया तो -5 वोल्ट में -3 एम्पियर, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए. बट दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना. दिस सपोज, एंड सेमीकंडक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट फॉलो दिस लीनियर पाथ. सेमीकंडक्टर वो लीनियर पाथ भी फॉलो नहीं कर रहा. और दूसरा, जब मैंने उसका साइन चेंज किया, उसका डायरेक्शन चेंज किया, तब भी वो प्रोपोर्शनल नहीं है. जितना करंट डेवलप होना चाहिए था नेगेटिव साइड में उतना नहीं हुआ. तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. सपोज यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में इट विल हैव अ नॉन लीनियर, अगेन इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो जैसे ये इधर हुआ तो ये उसका उल्टा ऐसा बन जाना चाहिए यहाँ पे, बट ये ऐसा फॉलो नहीं करता है. ओके, इसको थोड़ा सा और अब
एक्सेंचुएट करके ऐसा, सो समथिंग लाइक दिस. सो व्हेन आई चेंज द साइन, the same for the same value of for the same magnitude of the voltage, the current will not have the same magnitude. Okay, तो इसको मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ. The relation between V and I depends on the sign of V. It means if I is the current for a certain value of V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude I in the opposite direction. And this happens in the case of diodes. In case of diodes, junction diode जो होते हैं सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, जंक्शन डायोड में ऐसा होता है. ओके, सो दिस वाज द सेकंड थिंग. थर्ड इज कि सपोज फॉर ए पर्टिकुलर current I should have a particular voltage according to Ohm's law for a particular current. Suppose I'll draw a graph again. Suppose here again it is V and here it is I. अगर Ohm's law फॉलो करते हैं, है ना, तो एक कंडक्टर का सपोज ये एक करंट है ये, तो इसकी एक वैल्यू है वोल्टेज की V, है ना. सो एक करंट के एक ही वोल्टेज की वैल्यू है ना. दूसरा कोई करंट लेता हूँ मैं इधर पे, है ना. सो I1, I2, V2, V1. ओके, सो फॉर वन करंट this one value of voltage, unique value of voltage. For another type of another value of current, there is another value of voltage. But there are certain materials like gallium arsenide in which this will not follow the same path. Okay, इसमें क्या होगा? It will have for some instant it will have a linear path. उसके बाद में ये path deviate हो जाएगा और एक मैक्सिमम, इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा बना दिया, मैं इसको छोटा करता हूँ. ओके, अब इसको थोड़ा समझेंगे, है ना. फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट हियर आई कैन सी देयर आर टू वोल्टेज वैल्यूज. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के दो वैल्यू हैं. देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट यूनिक फॉर दैट वैल्यू ऑफ करंट. इस आई के लिए आई कैन हैव से V1 एंड V2 दो वैल्यूज़ हैं, दिख रहे हैं मुझे. सो इट इज़ नॉट यूनिक. ओके, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक. दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट I. ओके, नाउ व्हाट आई कैन सी हियर इज फॉर अप टू दिस पॉइंट, ये कैसा, ये जो मटेरियल है कैसा है, यहाँ पे ये लीनियर है, तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. लेकिन थोड़ा सा इसमें जाएंगे तो इस पॉइंट तक ये क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये नॉन लीनियर रीजन है. ये क्या है? नॉन लीनियर रीजन. लेकिन इससे आगे जाएंगे तो जैसे जैसे मैं वोल्ट बढ़ा रहा हूँ तो ये करंट ड्रॉप हो रहा है. करंट सपोज ये कहाँ तक हो रहा है, ये यहाँ इस पॉइंट तक, है ना. तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट ड्रॉप हो रहा है, यानी इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है. तो सॉरी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. ओके, यहाँ पे वी आई है, आई वी है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. इसका मतलब है ये क्या हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. इसको क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. And this is for a particular material. It is gallium arsenide. ये किसके लिए है? ये gallium arsenide के लिए. Gallium arsenide is used in light emitting diodes. So you see there are three ways in which these devices have deviated from Ohm's law. First of all, it did not follow the
लीनियर पाथ यानी वी और आई के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी थी थोड़ा आगे गए तो वो नहीं हुआ। सेकंड में जब मैंने सेकंड केस में जो डिवाइस था जैसे कि डायोड, उसमें हमने अगर वोल्टेज वो या पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नहीं मिलता है। एंड थर्ड, दिस इन दिस टाइप ऑफ डिवाइस there is no unique value of potential difference for a given unique current. So these are the three things, three ways in which the Ohm's law may not be followed. So there are certain devices which do not Ohm's law, and these devices are called non-ohmic devices or non-linear devices. ऐसे devices को क्या बोलते हैं? Non-ohmic devices या non-linear devices. Example, vacuum tube, semiconductor diodes, liquid electrolytes, transistors. These are certain devices which do not follow Ohm's law. Now we'll discuss the temperature dependence of resistivity. Now let's go back to the relation which we had derived in the last class. There were two relations which we had derived. First one is R is equal to rho L by A. Rho is the resistivity. So R, the resistance of a conductor, is dependent upon three factors. First is the length, second was the area of cross section, and third resistivity, which actually depends upon the nature of material we are using for conductor. So R is equal to rho L by A. Further we had derived the relation that R is equal to mass of electron divided by the number of free charge carriers. The charge density is the number density of the free electrons, multiply this is again divided by the charge on the electron squared, and then tau is the average relaxation time taken between the two collisions of between the two events of collision. ये टाइम कितना ले रहा है वो है L and A, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये हम निकाल चुके हैं पिछली क्लासेस में. ओके, नाउ इस रिलेशन से हमको दो चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं. इन केस ऑफ रेजिस्टेंस और इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट here I'll take in case of R is proportional to 1 upon tau, means R is inversely proportional to the relaxation time, and R is inversely proportional to the number of free या number density of free electrons, है ना. ये चीज़ दो चीज़ें हमको एकदम क्लियर दिख रही हैं. R is inversely proportional to average relaxation time, and R is inversely proportional to the number of free electrons, the number density of free electrons. Now अभी हम तीन केसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस इज इन द केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स. इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर्स, अब इसमें क्या होगा, व्हेन वी रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटलिक कंडक्टर, इसमें क्या होगा कि भाई उसके नंबर डेंसिटी पे उतना खासा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसके नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई. थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, विच इन टर्न इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बढ़ा देगी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी बढ़ा देगी. बट व्हाट विल हैपन इज कि इनका जो टाइम, एवरेज टाइम फॉर बिटवीन टू कोलिजन है वो कम हो जाएगा. एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन कम हो जाएगा, यानी ये कम हो जाएगा. जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर ये कम हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना. रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यहाँ रो भी हो सकता है, रो
यानी रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मेरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, यानी द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई और वो एटम से या आयन से ज़्यादा जल्दी टकराने लगा, और ज़्यादा जल्दी टकराने लगा तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इन केस ऑफ मेटल, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इसका जो मोर इफेक्ट है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से है, ना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। उतना अप्रिशिएबल चेंज इसका नहीं होता, इसका होता है। इसके कारण में जो रेजिस्टेंस है मेटल पे, मेटलिक कंडक्टर में, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, सो when the temperature of metal conductor is raised, the number density of electrons in metal conductor does not change appreciably. However, the ions atoms of the metal vibrate with greater amplitude about their mean positions. Due to increase in thermal energy, the frequency of collision of free electrons increases. The average time of collision tau thus decreases with temperature. Thus, from above relation, the resistance and resistivity increase with increase in temperature for metals. ओके, ये अब इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैसे होगा, उसका एक रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशन क्या है, एक बहुत ही लिमिटेड और लो टेम्परेचर के लिए ये हमने अप्रॉक्सीमेटली ये निकाला है ना। सो फॉर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो लोअर लेवल है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटलिक कंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, ना, इसको मैं इधर लिखता हूँ, द रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय, है ना, rho T is equal to rho naught 1 plus alpha T minus T naught, ये इसका रिलेशनशिप है, पर्टिकुलरली फॉर अ वेरी नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर में। ये फॉर मेटलिक कंडक्टर्स ये है। तो भाई ये रो टी क्या है, रो टी इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। एंड रो नॉट क्या है, अगेन इट इज रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, टी नॉट। ओके, देन व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द थर्मल और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ Okay, again I'll read this relation again. Rho T is equal to rho naught multiplied by 1 plus alpha T minus T naught. Okay, so what is rho T? Rho T is resistance at temperature T. Rho naught is resistance, resistivity at reference temperature T naught. And reference temperature क्या होता है, इसकी जनरली ऐसा टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री भी लेके चलते हैं। अगर आप अपने टेबल में देखेंगे पेज नंबर 102 में, तो हमने कल जो रेजिस्टिविटी देखी थी वो कौन से टेम्परेचर में थी, एट 0 डिग्री सी। अब उसके अगर बगल में आप देखोगे तो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फ़ा वो भी दिया हुआ है एट and the unit of alpha actually is temperature inverse. Unit of alpha dimension is temperature inverse. तो ये भी दिया हुआ है। तो इससे हमको एवरेज चेंज इन रेजिस्टेंस वो मिल जाएगा। अब ये जो अल्फा है फॉर मेटल्स, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, फॉर मेटल्स दिस अल्फा इज पॉजिटिव। ये अल्फा की वैल्यू फॉर मेटल्स इट इज़ पॉजिटिव। तो अब एक केस ले लेते हैं हम कॉपर का।
at very low temperature even copper does not behave as a ohmic conductor. At very low temperature का मतलब क्या है, 0 केल्विन से लेके से 150 केल्विन तक it does not have a linear relationship between current and potential difference. तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, फॉर ए वेरी लो टेम्परेचर. ये मेटलिक कंडक्टर है, कॉपर हम ले लेते हैं, कॉपर, और कॉपर इज़ अ प्योर मेटल, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर मेटल. सपोज दिस इज द रेजिस्टिविटी, रो टी लिख देता हूँ मैं इधर, एंड दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 0, 50, 100, 150 Kelvin. Okay, here rho is of the order 10⁻⁻8 ohm meter. Okay, 10⁻⁸ ohm meter ऐसा है. इधर रेजिस्टिविटी है, इधर टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 50 केल्विन, 100 केल्विन, 150 केल्विन. तो फॉर दिस केस थोड़ा सा resistance रहेगा. It will be having a small resistance here and then it will have this kind of relation. Okay, so here it is not having a linear relation. For low temperature pure metal copper के लिए it will not have a linear relationship, it will have a certain curved relationship. So this is for metal, pure metal, which is copper. There are certain other metals which are actually alloys. They are not pure metal. Pure metal नहीं है, alloy है. उस केस में like there are alloys of nichrome. nichrome होता है और मैंगनीन होता है, कॉन्स्टेंटाइन होता है. ये जो है ये alloy, इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमको दिखता नहीं है. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड दे एग्जिबिट वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना. दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी पहला तो, एंड दे शो वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. ओके, सो दैट इज़ वाई दीज alloys are used as standard resistor. जो वाउंड रेजिस्टर होते हैं, कॉयल वाउंड रेजिस्टर होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, जो कि बनते हैं इससे मैंगनीन से या नाइक्रोम से या कॉन्स्टेंटाइन से. इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो दे हैव अ वेरी स्टेबल रेजिस्टेंस. जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की बहुत स्टेबल होती है ओवर अ टेम्परेचर रेंज. तो अगर मैं उसको फिर से मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, है ना, नाउ हियर यहाँ टेम्परेचर का स्केल चेंज हो जाएगा. हाँ, सो सपोज़ यहाँ पे टेम्परेचर का स्केल सपोज़ ये 200 केल्विन है, ये 400 है, 600 है, 800 केल्विन है ना. तो इधर सपोज़ ये स्टार्ट ही हुआ है 1 ओम मीटर से. ओके, 1 ओम मीटर से स्टार्ट किया है, फिर 1.2, 1.4, 1.6 ऐसा है. तो सपोज 1.1, 1.2, 1.3, है ना. इट स्टार्ट्स हियर, है ना, एंड इट विल हैव अ वेरी वीक रिलेशनशिप. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इतना भी नहीं रहेगा. इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस, है ना. और फॉर कॉन्स्टेंटाइन तो ये स्ट्रेट लाइन रहता है. कॉन्स्टेंटाइन के लिए एकदम ऐसा बिल्कुल ऐसा रहता है. सो इट डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इट्स रेजिस्टिविटी एंड हैंस इन इट्स रेजिस्टेंस. सो अभी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमको अभी कभी लैब वर्क के लिए यूज़ करना होता है. तो जब हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो उसमें ये एलॉयज़ के वायर यूज़ होते हैं. कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, मैंगनीन, इनके होते हैं. सो दिस इज़ द रिलेशन. अब हम बात करते हैं एक थर्ड टाइप ऑफ डिवाइसेस या मटेरियल की, जो है सेमीकंडक्टर्स. अब सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स फॉर एग्जांपल कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें क्या होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे जो N है
इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, है ना. हमने अभी अभी लिखा था कि आर और रो, आर या रो, है ना, यहाँ पे आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिलैक्सेशन टाइम एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो दिस n, it plays a very vital role here in case of semiconductors. So the number of free charge carriers increases exponentially with the increase in temperature. For semiconductors this increases exponentially, ये बहुत exponentially increase करता है ना. रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज होता है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज होता है. दिस डिक्रीजेस, है ना. तो अगर ये डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना. यहाँ पे ये इंक्रीज होने से ये कम होगा, ये इंक्रीज होने से भी कम होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन ये डिक्रीज कितना हो रहा है, इन दोनों को आप कंपेयर करें तो इसका इफेक्ट जो इंक्रीज है ये एक्सपोनेंशियल है, जबकि ये वेरी लो डिक्रीज इन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है. तो क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है. अगर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल कम डाउन एक्सपोनेंशियली, है ना. इसका इफेक्ट उतना नहीं होगा इसको इंक्रीज करने में जितना इसका इफेक्ट होगा इसको डिक्रीज करने में. तो सपोज फॉर एनी सेमीकंडक्टर, मैं ये फिर से करता हूँ, ये रो है और ये T है ना. तो एज द T टेम्परेचर इंक्रीजेज its resistivity decreases exponentially. Okay, so the resistivity of semiconductor decreases exponentially with increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. So this was all about the temperature dependence of resistivity. So in our next class what we'll do is we'll derive some formula for electrical energy and power. Thank you.